Hello everyone, this is the part 2 of Economic Survey 2020-21. First four chapters are done. Let's start with the chapter number 5 and 9 as well, because these two chapters are correlated. The first chapter headline says, or the headline is, the healthcare takes center stage finally. It means the central government is finally addressing the importance of healthcare, and now the central government is in action. And the chapter number 9 talks about the very important scheme or the program of central government, that is the PMJ, where J means Jan Arogya Yojana. These chapters are correlated, so we are going to brief these two chapters together. So let's start. See, this slide says ki if there is expenditure of 2.5% of GDP in terms of healthcare, अगर आप healthcare I mean public healthcare पे 2.5% of GDP spend करते हैं, then your pocket expenditure for the healthcare can be reduced drastically from 65% to 35%. It means in India like country where your income is just 100 rupees, अगर आप 100 रुपये कमाते, then somewhere 65% or 65 rupees of out of 100 you have to spend on healthcare, right? So this is the current situation in India. But after applying this like the health care programs by spending 2.5% of GDP on health, on public health care, then we can reduce this from 65% to 35%. Means after this एक्शन, जो भी एक्शन यहाँ पे है, चाहे वो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं या फिर अदर पब्लिक हेल्थ केयर रिफॉर्म्स, जिनके थ्रू जो एक्सपेंडिचर है फ्रॉम 65% टू 35% हो गया, आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 50% रिडक्शन है, जस्ट बिकॉज ऑफ द करेक्ट बजटिंग फॉर द पब्लिक हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर. आप यहाँ पे वेरियस कंट्रीज़ के कंपैरिजन भी देख सकते हैं. फॉर बांग्लादेश इट इज़ लाइक +70%. लाइक इफ़ यू अर्निंग 100 रुपीज़, then more than 70 rupees you have to spend on your health. But see, even the China, where the China is somewhere equal to India's nowadays situation, where the normal Chinese citizens spend somewhere 35%, nearly 35% like India on the healthcare issues. Okay, but आप देख सकते हैं here the best performance is done by the Thailand बेस्ट परफॉर्मर है दैट, क्योंकि एक थाई पर्सन जस्ट स्पेंड समवेयर 10% ऑफ देयर income on the healthcare issues. So, that is just because of the Thailand government policy. ओके, सो यहाँ पे इन शॉर्ट बताया जाए कि अगर आप जीडीपी का एक करेक्ट प्रोपोर्शन लगभग 2.5% हेल्थ केयर, पब्लिक हेल्थ केयर पे स्पेंड करते हैं, देन आप ड्रास्टिकली रिड्यूस कर सकते हैं पॉकेट एक्सपेंडिचर फॉर द हेल्थ केयर. नाउ सी, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के साथ प्रॉब्लम जो है, दैट इज़ द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन. असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन मीन्स इन्फॉर्मेशन फेलियर. आप इसको कह सकते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस. इन अदर वर्ड्स, कि जो लोग हैं वो प्रॉपरली अवेयर नहीं हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन शेयर्ड नहीं है इन पब्लिक डोमेन, और अथॉरिटीज़ इवन एक दूसरे के साथ सिंक नहीं है इन्फॉर्मेशन के साथ. जो दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो कि हाईलाइट की थी केनेथ एरो. ये भी एक इकनॉमिस्ट थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था 1963. इन्होंने भी इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया कि जो एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन फेलियर है हेल्थ केयर में, ये बहुत बड़ा रीज़न है बिकॉज ऑफ द लेमैन पर्सनस एक्सप्लॉयटेशन और फॉर द बिग एक्सपेंडिचर डन बाय द लेमैन. आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल हियर, फॉर diseases like cancer where the public like hospitals treatment is just 27,000, but for the private sector it is somewhere 1 lakh rupees. कहीं ना कहीं लगभग 3.5 गुना
3.7 टाइम्स ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है इन पब्लिक सेक्टर, एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। कार्डियो के केस में दैट इज 6.8 टाइम्स मोर। अगर जितना एक्सपेंडिचर आपका पब्लिक हॉस्पिटल या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगता है, उससे लगभग 6.8 टाइम्स ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में हमें पे करना पड़ता है फॉर द सेम क्योर, फॉर द सेम ट्रीटमेंट। वैसे फॉर इंजरीज दैट इज़ ऑलमोस्ट 6 times higher than the government hospital when we talk about the private hospitals. So these issues are existed just because of asymmetric information or the market failure, because market failure है यहाँ पे fair pricing नहीं हो पाती ट्रीटमेंट की क्या एक्चुअल कॉस्ट होनी चाहिए एज पर मार्केट mechanism. So here regulation is important. That is why in the healthcare regulations are implemented. एंड asymmetric information in healthcare है, इसके ऊपर थोड़ी सी और factual information है जो हमें समझनी चाहिए, and that is very important to understand. Higher charges do not assure better quality. It means if you are paying so much, it doesn't mean you are getting the quality treatment. Okay, basically what happens, patient rely on the reputation of the doctor and hospital for the quality. Let's say if some famous doctor and hospital is there, then the patients rely over that, and that is just a part. Okay, एक छोटा सा part है. It reputation doesn't say that they are serving very good quality, कि उनकी quality बहुत अच्छी है. जब हम PMJ जो स्कीम है, पहले मैं को एक ब्रीफिंग दे देता हूँ. PMJ बेसिकली जो आयुष्मान भारत प्रोग्राम है, हमारे जो स्कीम है, उसके अंदर दो सेक्शन है. पहला सेक्शन है कि हमें मिलियंस समवेयर 5 लाख, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज़ चेक द डेटा, हमें हेल्थ केयर एंड वेलनेस सेंटर्स कंस्ट्रक्ट करने in big numbers. And the second part of the Ayushman Bharat scheme is the PMJ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें लगभग 10 करोड़ 70 लाख लोगों को 5 लाख का एनुअल हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा. 10 करोड़ 70 लाख फैमिलीज़ को एनुअल हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा, जो अप्रॉक्सीमेटली 50 करोड़, मोर देन 50 करोड़ लोगों को कवर करते हैं. तो दैट इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम डन बाय द गवर्नमेंट, एंड दैट इज़ नोन बाय द PMJAY, जन आरोग्य योजना. Okay, so as per Jan Arogya Yojana, difference in quality between the public and the private sectors provider जो है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें मिली. ये बताता है कि बेसिकली ऐसे नहीं है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा बेटर, आपका बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कंपैरेटिवली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, राइट. और ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं देन द प्राइवेट सेक्टर, बट येस वी नीड टू अंडरस्टैंड बाय दिस डेटा कि जब एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक पेशेंट जाता है तो 64% उसके रीएडमिशन के रेट होते हैं फॉर गेटिंग क्योर अगेन इन द सेम हॉस्पिटल. ओके, एंड अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई पेशेंट जाता है तो 70% चांस होते हैं कि दोबारा उसी हॉस्पिटल में जाएगा फॉर द नेक्स्ट टाइम ट्रीटमेंट. ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें इससे मिलती है, जिससे पता चलता है कि ऑलमोस्ट जो पब्लिक सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स हैं, आई मीन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं और जो प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम है, दोनों ही लगभग सेम लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं. हाँ, प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा आगे है इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट सेक्टर. For enabling India to respond to pandemic, the health infrastructure must incorporate flexibility. जो health infrastructure है वो थोड़ा सा flexible होना चाहिए so that जो हमें drastic changes करने पड़े या जो हमें challenges face करने पड़े in the current scenario, COVID like situation, इसको हम दोबारा properly address कर पाएँ without any major challenge. सो गिवन द मार्केट फेलियर ड्यू टू असमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, जैसे इन लास्ट स्लाइड में भी कहा था कि जो मार्केट फेलियर है बिकॉज एक्चुअल प्राइस मैकेनिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करता, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन फेलियर, बिकॉज मार्केट में एक्चुअल इन्फॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन का सिंक ही नहीं है, जिसके लिए रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन द हेल्थ सेक्टर. दैट इज़
suggested by the economic survey this year. सो आयुष्मान भारत, यस आयुष्मान भारत मैंने बताया ना, ये एक मेगा प्रोग्राम है जिसके दो पार्ट है. फर्स्ट पार्ट इज़ कंस्ट्रक्टिंग health care and wellness centers, and the second is giving the health insurance to 10.7 crore families for 5 lakh rupees per annum, and this is for secondary and tertiary treatment. And as per the data, you can see that the most of the time that the Ayushman Bharat scheme, that the health insurance scheme is used for the general surgery. You can see that more than 15 lakh general surgeries are done under the Ayushman Bharat scheme. ओके, ऑन दी अदर साइड आप देखिए जो कार्डियो वगैरह के हैं इनके बहुत कम केसेस हैं. मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम दिस स्कीम इज़ यूज्ड by the normal people for the nominal surgeries, general surgeries like. ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट. एंड आप नीचे वाले ग्राफ में भी देख सकते हैं कि जो कोविड के वजह से जो जनरल मेडिसिन का था, जनरल मेडिसिन का यूज़ था, उसको काफ़ी शार्प डिक्लाइन आया बिकॉज ऑफ कोविड, क्योंकि वहाँ पे एक ही नीड थी, दैट इज़ द कोविड क्योर, राइट. बट इसका मतलब ये नहीं कि जो बेसिक जो लाइफ सस्टेनिंग फैसिलिटीज़ थी हेल्थ केयर के, फॉर एग्जांपल डायलिसिस, उसमें कोई हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया. दे वर कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज्ड एंड यूटिलाइज्ड अंडर दिस स्कीम के अंडर. जो डायलिसिस जैसे जो कि लाइफ सपोर्ट ट्रीटमेंट्स होते हैं वो भी कंटिन्यू रहे इन कोविड. बट जो जनरल मेडिसिन था, जो जनरल मेडिसिन वाला ट्रीटमेंट था, उसमें कहीं ना कहीं डिक्लाइन आया बिकॉज ऑफ कोविड, क्योंकि कोविड को प्रायोरिटी दी गई थी. बट आई थिंक हम जनरल मेडिसिन वाले जो प्रॉब्लम्स उनको पोस्टपोन कर सकते थे, बट लाइफ सपोर्टिंग जो भी ट्रीटमेंट था उनमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ. दिस इज़ एज पर द इकोनॉमिक सर्वे. नाउ देखिए जो आयुष्मान भारत है, इसने कैसे जो आउटकम्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, उनमें ड्रास्टिक चेंज लाया है, इसको कंपैरेटिवली शो किया गया है. देयर आर द टू थिंग्स यहाँ पे मेंशन है. वन थिंग इज़ दैट कि जिन स्टेट्स में जो PMJ जो हेल्थ इंश्योरेंस है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का PMJ स्कीम जो है ऑप्ट की, और जिन स्टेट्स ने आपकी जो स्कीम है PMJ उसको ऑप्ट नहीं किया. NFHS क्या है? NFHS मीन्स नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे. जो पहला जो 4 है ये हुआ था इन 15-16 आई गेस इस टाइम के आसपास हुआ था. आई एम नॉट श्योर, बट ये अगर मैं आपको इन नटशेल कहूँ तो ये कब हुआ था? ये हुआ था बिफोर PMJ स्कीम, जो आपकी जन आरोग्य योजना, उससे पहले जो ये है नेशनल फैमिली हेल्थ स्कीम का सर्वे हुआ था. एंड जो NFHS 5 है ये आफ्टर द स्कीम सर्वे हुआ था नेशनल फैमिली हेल्थ का. उसके अकॉर्डिंग आप कंपैरिजन से देख सकते हैं कि जिन स्टेट्स ने इंश्योरेंस को जिन स्टेट्स ने PMJ स्कीम को ऑप्ट किया, उन स्टेट में जो हेल्थ इंश्योरेंस का रेट है दैट इज़ इंक्रीज्ड बाय द 54%. ओके, जो पहले 24% हेल्थ इंश्योरेंस होते थे वो 36% हेल्थ इंश्योरेंस वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं. ऑन दी अदर साइड जहाँ पर आप देखिए, जहाँ पर PMJ स्कीम जिन स्टेट्स ने ऑप्ट नहीं की, एज पर डेटा जो बिफोर स्कीम कितने थे, लगभग 50% हेल्थ इंश्योरेंस वहाँ पे एग्जिस्ट करते थे इन जनरल पीपल, जो कि डिक्लाइन हुए बाय 10%. और आज सिचुएशन ऐसी आफ्टर दिस स्कीम कि दे आर जस्ट 45%. Okay, so the improvement in coverage of the health insurance scheme you can clearly see there in the graph. आप देख सकते हैं पॉजिटिवली कि अगर जिन स्टेट्स ने यूज़ किए PMJ वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस का जो रेट है वो बढ़ा है, और जिन्होंने यूज़ नहीं किया वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस का जो रेट है वो कम हुआ है, राइट. एंड यू कैन कंपेयर स्टेट वाइज ऑल्सो. फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल ने जो PMJ को ऑप्ट नहीं किया था, तो उनकी सिचुएशन ग्रीन बार्स की तरह हैं, जहाँ पे क्या हुआ, हेल्थ इंश्योरेंस इन पब्लिक डोमेन कम हुआ है. ऑन दी अदर साइड बिहार, सिक्किम, असम जैसे स्टेट्स जिन्होंने ऑप्ट किया PMJ, वहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस में ड्रास्टिक चेंज आया है, मतलब इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज़ हुए हैं वो. सेम इम्प्रूवमेंट अब देखिए, जब ये स्कीम है जो इंश्योरेंस कवरेज है, इसने
इससे क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आई हैं. दीज आर द रिजल्ट्स. यू कैन सी इन्फेंट एंड द चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इसमें बेटरमेंट हुआ है. देन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इम्प्रूव हुआ है. ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड डिसीज़ में इम्प्रूवमेंट आई है. चाइल्ड वैक्सीनेशंस में इम्प्रूवमेंट आई है. एंड अवेयरनेस ऑफ HIV एंड एड्स अमंग द एडल्ट्स, इसमें भी काफ़ी बेटर रिजल्ट्स देखने को मिले हैं. दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द स्कीम, PMJ स्कीम. एंड दैट अगेन मैं कह रहा हूँ, दैट इज़ द पार्ट ऑफ आयुष्मान भारत. देयर आर 2 parts ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम. फर्स्ट इज़ constructing healthcare and wellness center and the second is जन आरोग्य योजना, जिसमें हम हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं अप टू 5 लाख रुपीज़ फॉर मोर देन 10 करोड़ फैमिली. एंड ये वर्ल्ड्स की बिगेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है. सो द नेक्स्ट चैप्टर इज़ प्रोसेस रिफॉर्म्स. देखिए जो इंडिया के जो प्रोसेस हैं, दीज आर लाइक द ओवर रेगुलेटरी एंड काफ़ी हॉच पॉच है और काफ़ी लेंदी है. दैट इज़ द टाइम कंज्यूमिंग एंड लॉट्स ऑफ इश्यूज आर देयर. समवेयर उससे डिले. The biggest thing is ineffectiveness of the process because of the lots of delay where we have to spend lots of time, money and efforts for still we face delay issue face करते हैं. The second thing is it also leads the corruption. That is why process reforms becomes very important. और हमने process reforms के ऊपर वर्क किया है. आइए इसको एक बार एनालाइज करके देखते हैं. देखिए ये स्लाइड कहती है कि ओवर रेगुलेशन लीड्स टू मोर डिस्क्रिशन. जब रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होते हैं तो हमें बहुत सारी जगह पे डिसीजन लेने पड़ते हैं, जजमेंटल होना पड़ता है, राइट. और यहाँ पे एक प्रॉब्लम एड्रेस की गई. अगेन ये भी एक नोबेल प्राइज़ विनर्स के थ्रू ही है. उन्होंने बताया कि देखिए जब क्या जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मतलब जो हमें वर्क करने होते हैं, उनके जो वर्क के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है. बिकॉज देयर आर नंबर्स ऑफ एब्लिगेशंस, so many obligations, and for that a common firm or organization for an organization ये बहुत मुश्किल हो जाता है एंटिसिपेट करना और स्पेसिफाई करना और फुलफ़िल करना जितने भी ऑब्लिगेशंस हैं सारे के सारे टूवर्ड्स ऑल द पार्टीज़. और इसीलिए इनकम्प्लीट रेगुलेशंस जो है इनएविटेबल हो जाते हैं. मीन्स आप कुछ भी कर लीजिए, आप कंप्लीट रेगुलेशन कभी कर ही नहीं कर पाएंगे. जो भी रेगुलेशन की नीड है उसको फुलफ़िल कर ही नहीं पाएंगे. एनी ऑफ द हाउ कुछ ना कुछ रिमेन रह ही जाता. आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं. फॉर एग्जांपल देखिए जो बेसिकली हमें नीड क्या होती है अगर आप ऑन रोड ड्राइव करते हैं, राइट. सो RC, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन एंड लाइसेंस, राइट. बट you never know, अगर ट्रैफिक पुलिस वाले को आपका चालान काटना होगा देन देयर विल ऑलवेज रिमेन सम पॉइंट जहाँ पे वो आपको तो चैलेंज कर सकता है और आपसे आपका चालान कर सकता है. क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ रेगुलेशन एंड हम सभी को प्रायोरिटी नहीं दे सकते और सारे फुलफिल ऑल द टाइम नहीं कर सकते. दैट इज़ वाई इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा एग्जिस्ट करते हैं. और जिस प्रॉब्लम को प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया है गवर्नमेंट ने थ्रू और उसी बात को इकोनॉमिक सर्वे हमें बताता है. गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का इशू बहुत मेजर है और बहुत बड़ा है. इस इशू को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि देखिए एक क्लीन चिट कंपनी अगर उसको अपने ऑपरेशन में शट डाउन करना है तो ऑलमोस्ट 570 डेज़ लग जाते हैं उसको क्लोज़ करने में, जो डॉक्यूमेंटेशन है या जो पेपर वर्क करने में. ऑन दी अदर साइड सिंगापुर में जस्ट 4 months 120 डेज़ ही लगते हैं. इट मीन्स 4 years यू नीड. आप देख रहे हैं कितना टाइम, एफर्ट्स एंड मनी यूज़ हो रही होगी उस डॉक्यूमेंटेशन में जस्ट टू शट डाउन अ क्लीन चिट कंपनी जहाँ पे कोई लिटिगेशन नहीं है, कोई इशू नहीं है जिस कंपनी के साथ, राइट. तो इनकम्प्लीट और ये सब क्यों होता है, ये सब होता है ओवर रेगुलेशंस की वजह से. क्योंकि इतने सारे रेगुलेशंस होते हैं सारे फुलफिल नहीं हो सकते. हाँ कुछ प्रायोरिटी वाइज लेट्स से देयर आर 100 रेगुलेशंस, देयर आर 100 फॉर्मेलिटी यू नीड टू फुलफिल. आउट ऑफ 100 यू फाइंड दैट द 25 आर दी एट द प्रायोरिटी और जिन पे आप 100% परफॉर्म करते हैं. फॉर रेस्ट यू गिव लेस प्रायोरिटी. बट जब टाइम आता है सुपरविजन का तो जो सुपरवाइज़र होगा, जो इंचार्ज होगा, उसके लिए जो प्रायोरिटीज़ पे कोई और 25 ऑब्लिगेशंस होंगे. देन आप देखिए यहाँ पे उसके 25 जो उसकी प्रायोरिटी और जो आपकी प्रायोरिटी में मिसमैच होगा जिसकी वजह से और डिले होगा, राइट. तो ये सारे इशू हमेशा एग्जिस्ट करते हैं और इन्हीं इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रोसेस रिफॉर्म्स लाए. प्रोसेस रिफॉर्म्स मतलब रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई करना एंड जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको मिनिमाइज़ करना एट द मिनिमम लेवल.
तो देखिए इसके लिए कुछ प्रोसेस रिफॉर्म्स हैं जो हमें करने हैं। सिंपल रेगुलेशंस कंबाइंड विद द ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यस, जो आपके रेगुलेशंस होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइंग होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब हर्डल फ्री होने चाहिए वो, ताकि कोई भी इजीली उनको फुलफ़िल कर पाए और जो कॉन्ट्रैक्ट्स उनको कंप्लीट कर पाए। इससे देखिए टाइम एफर्ट्स भी बचेंगे, आपका जो डिले होगा प्रोसेस में उसमें भी सेविंग होगी, प्लस करप्शन को भी लीड नहीं करेगा ये। देखिए जो ट्रांसपेरेंसी में भी इम्प्रूव, जो सुपरविजन जो उसमें भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और एक अच्छे लेवल पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये भी एक प्रोसेस रिफॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सुपरवाइज़ कर रहे हैं वो प्रॉपरली उसकी सुपरविजन जो है वो प्रॉपरली कैसी हो, वो प्रॉपरली ट्रांसपेरेंट हो। स्ट्रॉन्गर सिस्टम ऑफ एक्स एंड अकाउंटेबिलिटी सच एज द बैंक बोर्ड्स। फॉर एग्जांपल आपके पास ना एक स्ट्रॉन्गर सिस्टम होना चाहिए, एक मैकेनिज़्म होना चाहिए जो जिसको आप अकाउंटेबल ठहरा सके। मीन्स आपके पास वेल डिफाइंड एक मैकेनिज़्म होना चाहिए जो अकाउंटेबल हो प्रॉपर प्रोसेस के लिए, अगर वहाँ पे कोई इश्यूज़ आते हैं। और इसके लिए आपका जो वो मैकेनिज़्म है वो इतना कैपेबल है हो कि वो सारे सिचुएशंस को पहले से ही एंटिसिपेट कर पाए और उसके अकॉर्डिंग उसके पास प्रॉपर गाइडेंस एंड सॉल्यूशंस अवेलेबल हो। एंड एक्स पोस्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज़्म, इट मीन्स अगर कोई इशू आता है इन फ्यूचर तो उसके रिजोल्यूशन का भी एक मैकेनिज़्म होना चाहिए। देखिए एक्स एंटे मतलब पहले से आपके पास अकाउंटेबिलिटी वाला एक मैकेनिज़्म होना चाहिए जहाँ पे आप प्रॉपरली अकाउंटेबल ठहरा पाएँ प्रोसेस रिफॉर्म्स प्रोसेस के लिए, अगर कुछ भी होता है तो मतलब जो वो प्रॉपरली गाइड करेगा, इन शॉर्ट गाइड करेगा, आपकी हेल्प करेगा और उस प्रोसेस को कंप्लीट करवाने में उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा। द सेकंड थिंग इज़, अगर वहाँ पे कोई इश्यूज़ आते हैं, कोई डिस्प्यूट्स वगैरह आते हैं, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ पे रिजोल्यूशन का भी मैकेनिज़्म होना चाहिए। आइए इसको सिंपली ऐसे समझते हैं। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो डायरेक्ट टैक्स का जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, दैट इज़ योर सिस्टम फॉर अकाउंटेबिलिटी, ओके। और जो अपीलेट होते हैं, जहाँ पे आप अपील करते हैं इन केस अगर कोई डिस्प्यूट होता है आपके टैक्सेशन वगैरह में, सो दैट इज़ द रिजोल्यूशन मैकेनिज़्म। एंड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म मीन्स दैट will help you, guide you in all the things and will be accountable for all the issues regarding to your income tax, okay. Now the next chapter, आइए इस चैप्टर को देखते हैं। रेगुलेटरी फॉरबियरेंस एंड एमरजेंसी मेडिसिन नॉट अ स्टेपल डाइट। इट मीन्स रेगुलेटरी फॉरबियरेंस था क्या, हमने ना रिलैक्सेशन दिया था बैंकिंग सेक्टर को अपने, बेसिकली ये चैप्टर उसी के बारे में। जब 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो उस टाइम पे हमने अपने बैंकिंग सेक्टर में रिलैक्सेशन दी, जहाँ पे मोर्टगेज वगैरह में थोड़े मतलब हमने उनको लाइट किया, सो दैट जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको फेस किया जा सके। अब प्रॉब्लम क्या थी कि वो जस्ट हमने एक शॉर्ट टर्म क्या थी रेमेडी दी थी, शॉर्ट टर्म हमने क्या दिया था, रिलीफ दिया था। बट देखिए दैट वाज जस्ट एमरजेंसी मेडिसिन, एमरजेंसी में यूज़ करनी चाहिए, बट आप उसको रेगुलरली अगर यूज़ करेंगे तो दैट विल डेफिनेटली हार्म यू। आप एक एमरजेंसी मेडिसिन को हमेशा यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी उस मेडिसिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जो रेगुलेटरी फॉरबियरेंस थी, जो हमने रिलैक्सेशन दिए बैंकिंग सेक्टर को, वो इम्पॉर्टेंट थे बिकॉज ऑफ 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। लेकिन हमने क्या किया, उनको लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रेच किया ऑलमोस्ट 7 years। दैट वाज नॉट द नीड, बट फाइनली जो वो एमरजेंसी मेडिसिन थी वो क्या हो गई, वो एक स्टेपल डाइट बन गई, एक रेगुलर पार्ट ऑफ ऑपरेशन हो गया, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। आइए देखते हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए जब जो आपके फॉरबेरेंस थे, जब आप देख सकते हैं जीडीपी ग्रोथ है, एक्सपोर्ट, क्रेडिट ग्रोथ एंड आईआईपी, इन सब में क्या इम्पैक्ट पड़े। आप देख रहे हैं जो मिडिल वाला सेक्शन है, देयर आर 2 वर्टिकल लाइंस, रेड कलर्ड लाइन, इनके जो मिडिल का सेक्शन, दैट वाज द फॉरबेरेंस पीरियड, जहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे रिलीफ दिए थे, जहाँ पे आप का अगर लोन है या मोर्टगेज है वहाँ पे बहुत सारी रिलैक्सेशन दी गई थी, और बैंकिंग सेक्टर को काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई थी, सो दैट दे कैन रीस्ट्रक्चर देयर एसेट्स। तो देखिए ये जस्ट एक
सपोर्टिंग पैक था, एक लाइफ सपोर्टिंग पैक था फॉर द बैंकिंग सेक्टर जब वो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। इसको आप ये एरो देख पा रहे हैं, ये एरो बताता है कि यहाँ तक वो जो थी इमरजेंसी मेडिसिन की तरह उसको यूज़ करना था, बट आपने एक्सटेंड किया इसको लाइक ए स्टेपल डाइट लॉन्ग लास्टिंग, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिले। देखिए इससे क्या हुआ, इससे इन लॉन्ग टर्म जो थे आपको वो सपोर्ट देता रहा, बट वो फाइनली जो सपोर्ट था उसके साइड इफ़ेक्ट आप देख पाएंगे कहीं ना कहीं जो उसकी नीड नहीं थी, क्योंकि आप देखिए इम्प्रूव आप कर रहे हैं, आपकी जीडीपी इम्प्रूव हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक है, या और भी चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, बट वो वैसे भी अपने आप इम्प्रूव हो सकते थे अगर उनको फॉरबेरेंस ना दी जाए। तो फॉरबेरेंस जस्ट फॉर एमरजेंसी पर्पज़ था, जैसे कि आज कोविड की सिचुएशन जो है इस टाइम हमें फॉरबेरेंस अलाउ करने चाहिए, एंड दिस इज़ इनएविटेबल। डेफिनेटली हम बैंकिंग सेक्टर में रिलीफ प्रोवाइड करवाएंगे, बट हमें लेसन भी लेना चाहिए कि जो हमने स्ट्रेच किया उसको एक स्टेपल डाइट, एक रेगुलर रूटीन का पार्ट बना लिया उन रिलैक्सेशन को, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई वो प्रॉब्लम इस स्लाइड में भी मेंशन है, उनको भी देखेंगे। तो हमें इस कोविड सिचुएशन में भी फॉरबेरेंस देनी है, बट हमें लास्ट जो लेसन है उससे सीखना भी है, और ये फॉरबेरेंस फॉर द शॉर्ट रन होंगी, जस्ट फॉर सपोर्टिंग आवर बैंकिंग सेक्टर। ओके, अब हुआ क्या था लास्ट टाइम, देखिए जब आपने फॉरबेरेंस दिया तो इसमें आज जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे, बैंक ने उनको ना रिस्ट्रक्चर्ड एसेट्स कहना शुरू किया है। इट मीन्स अब आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे, जो बैंक्स हैं वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, जिसकी वजह से जो उनकी जो बैलेंस शीट थी उसको विंडो ड्रेस करते थे, वहाँ पे वो लॉस वगैरह शो नहीं कर पाते थे, ठीक है। अब जब वो लॉस वगैरह शो नहीं कर रहे हैं, उनकी बैलेंस शीट वो हेल्दी शो कर रहे हैं, और इसके अलावा देखिए इश्यूज़ क्या थे जो वो फॉरबेरेंस के इश्यूज़, इसके वजह से बैंक कॉन्टीन्यूसली जो अनहेल्दी फॉर्म्स थे, जो बैड परफॉर्मिंग फॉर्म्स थे, उनको लैंडिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं, और इन्होंने इतना एक्सेसिव ये किया कि उनके पास इतने रिजर्व्स वगैरह ही उन्होंने मेंटेन नहीं करे कि वो किसी शॉक को मैनेज कर पाएँ, जिसके जैसे आपने देखा होगा 1920 या फिर लास्ट 2021 ड्यूरिंग द कोविड ऑल्सो हमने बैंकिंग का कैपिटलाइजेशन किया, हमने दोबारा उनको फंडिंग की। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस इशू कि बैंकिंग ने विंडो ड्रेसिंग की, अपनी बैलेंस शीट्स की, उन्होंने एनपीए को प्रॉपरली रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो ये सारे इश्यूज़ का जो कहीं ना कहीं शुरुआत है वो क्या थी, एक्सेसिव इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट का यूज़ करना। ओके, तो इसके लिए क्या क्या लेसन है, इसके लिए लेसन यही है कि जो इश्यूज़ जो हमने पहले फेस किए ड्यूरिंग द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, उसको हमें दोबारा उससे लेसन लेना चाहिए, और ताकि दोबारा रिपीट ना हो। हाँ, कोविड में हम डेफिनेटली रेगुलेटरी फॉरबेरेंस देंगे, बट दैट विल नॉट बी एक्सटेंडेड इन इरेशनल मैनर, मतलब लॉजिकली हम उनको प्रोवाइड करवाएंगे, बट ऐसा नहीं कि अननेसेसरली हम उनको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। देखिए एक और प्रॉब्लम भी थी, जो हमारा जो एसेट क्वालिटी मैकेनिज़्म था वो भी मतलब आपको एग्जैक्टली ये नहीं बताता था कि बैंकिंग को कितनी कैपिटल की नीड है और बैंक में कितनी कैपिटलाइजेशन की ज़रूरत है, क्योंकि जो जो AQR थे वो जो हिडन एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे इन बैंक बुक्स, उनको वो प्रॉपरली शो नहीं करता था, जिससे पता ही नहीं चलता था कि बैंक की एक्चुअल में बैलेंस शीट में कहाँ पर डिफेक्ट है और कहाँ और क्या है, उसको सच में फ़ंड्स की नीड है या नहीं है। उसके अलावा जो जो AQR का जो मैकेनिज़्म था वो ये नहीं बताता था कि बैंक को कैपिटल रेज़ करनी चाहिए अगर अगर वो अंडर कैपिटल हो रहा है। ओके, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम थी, बैंकिंग सेक्टर वाज ऑलरेडी वीक बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, और उसने इस सिचुएशन को और भी ज़्यादा ख़राब कर दिया, बिकॉज आपके बैंक को कैपिटलाइजेशन की ज़रूरत है, बट वो कर ही नहीं रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी जो बैलेंस शीट है वो फेक है। और ये क्यों है? क्योंकि आपके पास रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा है, आपको अलाउ कर रखा है बिकॉज ऑफ द फॉरबेरेंस मैकेनिज्म। नाउ द चैप्टर 8 इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ ऑल अबाउट द इनोवेशन। ओके, इनोवेशन की बात करेंगे। इनोवेशन मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड आपको पता होगा इंडिया इन द फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री इन टॉप 50 इनोवेटिव इकॉनमीज़ में शामिल हुआ, एंड दैट वाज शोन बाय द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें इंडिया की जो रैंक थी वो 48 थी। आप देख पा रहे हैं, दैट इज़ द इनोवेशन इंडेक्स रैंक ऑफ इंडिया एट ग्लोबल लेवल इन टॉप 50 इनोवेटिव इकॉनमीज़। देखिए इसके
बट टॉप 50 में हैं हम 48 रैंक पे, बट दैट इज़ नॉट इनफ। अब क्योंकि आप देखिए हम 48 इज़ नॉट अ गुड नंबर, बट येस दैट इज़ द फर्स्ट टाइम achievement for us to getting chance in being the part of top 50 economies। बट हमें इसको अगर टॉप 10 में पहुंचना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिया को मस्ट एस्पायर जो उनका ग्रॉस एक्सपेंडिचर इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट दैट शुड बी बिटवीन 1.5 to 3% ऑफ जीडीपी, जो कि जो टॉप 10 इकॉनमीज़ है वो उनका ऐसा प्रपोर्शन रहती है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इतना खर्च करती हैं। तो अगर हमें भी और ज़्यादा इनोवेटिव बनना है, टॉप 10 या फिर टॉप 5 में अपने आप को प्लेस करना, देन हमें ऑलमोस्ट 1.5 to 3% ऑफ जीडीपी स्पेंड करना होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। देखिए इसके लिए ये जो प्राइवेट सेक्टर है उसको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो टॉप 10 इकॉनमीज़ है वहाँ पे गवर्नमेंट का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एक्सपेंडिचर जो शेयर होता है दैट इज़ जस्ट 11%, एंड द 68% इज़ डन बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड द बिजनेस सेक्टर, इन शॉर्ट द प्राइवेट सेक्टर। बट इंडिया का केस थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ऑपोजिट है, ऑलमोस्ट रिवर्स है। आप देखिए गवर्नमेंट मेजॉरिटी ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है गवर्नमेंट ही स्पॉन्सर करते हैं या फिर गवर्नमेंट ही करती है, बट जो प्राइवेट सेक्टर है दैट इज़ 37% ओनली इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन केस ऑफ इंडिया, जो कि इन्वर्स है। जहाँ पे जो मेजर पार्ट है वो प्राइवेट सेक्टर को प्ले करना चाहिए, वो इंडिया के केस में गवर्नमेंट प्ले करती है। तो देखिए जो बिजनेस सेक्टर ऑफ इंडिया जो 37% ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं अपना, राइट। इन टॉप 10 इकॉनमी जो बिजनेस सेक्टर है वो ऑलमोस्ट 68% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। आपका जो ये चार्ट है ये भी यही शो कर रहा है, पाई चार्ट, राइट। जो गवर्नमेंट है 56% ऑफ द ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन R&D, 3 टाइम्स ऑफ द एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द टॉप 10 इकॉनमीज़। मतलब जो टॉप 10 इकॉनमीज़ हैं वो जितना वहाँ की जो गवर्नमेंट जितना खर्च करती हैं इंडिया उससे 3 गुना ज़्यादा, इंडिया की गवर्नमेंट उससे 3 गुना ज़्यादा ऑलमोस्ट 56% ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करती है, एंड दैट इज़ इनवर्स सिचुएशन, राइट। जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को रिसर्च एंड डेवलपमेंट लीड करनी चाहिए, वहाँ पे गवर्नमेंट इसको लीड करती है। इससे कहीं ना कहीं आप देखिए अननेसेसरी बर्डन भी आता है गवर्नमेंट को जो बजटिंग है वहाँ पे भी गवर्नमेंट को थोड़ा कंसर्न होना पड़ता है जब वो बजटिंग कर रही होती है, फंड्स एलोकेशन कर रही होती है, राइट। तो यहाँ पे ज़रूरत है कि गवर्नमेंट एनकरेज करे प्राइवेट सेक्टर को, सो दैट प्राइवेट सेक्टर कैन लीड द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और देखिए इंडिया का क्या है कि जो करंट सिनेरियो यहाँ पे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो खर्चा है दैट इज़ जस्ट 0.65%, 1% भी नहीं है, राइट। और जबकि ये ऑन एन एवरेज कितना होना चाहिए, 1.5 से लेके 3% के बीच में होना चाहिए, जो कि जो लीडिंग इकॉनमीज़ हैं जैसा कि वो करती हैं, राइट, अगर हमें उनके जैसा बनना है। अब देखिए इसके पीछे जो इशू है वो क्या है, देखिए जो हमारे यहाँ के हमारे यहाँ पे ये इशू देखिए इस सिचुएशन होने के बावजूद भी है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता होगा कि जो हमारे टैक्स सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा लिबरल है, उसके इंसेंटिव्स हैं, उसमें बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं इंडियन टैक्स सिस्टम में जो R&D को इनकरेज करते हैं इन इंडिया, ठीक है। और फिर भी इंडिया में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट अभी भी अप टू द मार्क नहीं है, जबकि जो हमारे लिबरल टैक्स इंसेंटिव्स हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के। तो इन शॉर्ट अगर क्रक्स ऑफ द लेसन देखा जाए, जो हमारा 8th लेसन था इनोवेशन, यस हम फर्स्ट टाइम टॉप 50 में आए, बट हमें और भी ज़्यादा जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उसको एनकरेज करना होगा, सो दैट प्राइवेट सेक्टर कैन लीड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन आवर कंट्री। ये इसलिए नहीं कि फॉर लाइक गेटिंग इम्प्रूवमेंट इन इनोवेशन इंडेक्स, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है फॉर बीइंग कॉम्पिटिटिव। अगर उनको ग्लोबलाइजेशन में एग्जिस्ट करना है, राइट, इन एरा ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज जो आपसे ज़्यादा एडवांस्ड होंगे, इनोवेटिव होंगी, वो आपसे आगे निकल जाएंगे। तो अगर आपको compete करना है तो आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे आना ही पड़ेगा। दैट इज़ इन शॉर्ट आप कहें क्रक्स ऑफ द लेसन। Chapter number 10, the bare necessities. Bare necessities means the minimum necessities
which are important to live. ओके, फॉर एग्जाम्पल लाइक हम जनरल लेमन लैंग्वेज कहते हैं रोटी कपड़ा मकान. इट्स लाइक देर आर मैनी थिंग्स. ओके, सो बेयर नेसेसिटीज़ का यहाँ पे देखिए कंपैरिजन है जो इकोनॉमिक सर्वे आपको बताता है. जो बेयर नेसेसिटीज़ हैं इसमें आप देखिए आपको वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड अदर बेसिक फैसिलिटीज़. दीज आर सम देर आर सो मैनी थिंग्स जिसको बहुत सारे फैक्टर्स हैं इनको कवर किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आपकी जो है जिसके अकॉर्डिंग आपको जज किया जाता है कि आप जो बेयर नेसेसिटीज़ जो हैं उनको उनकी एक्सेसिबिलिटी आपके पास है या नहीं है. देखिए जो रेड शेड है वो शेयर करता है कि जो नेसेसिटीज़ जो बेयर नेसेसिटीज़ हैं उन पर जो एक्सेस है लोगों का वो बहुत पुअर लेवल पे है. मतलब बहुत कम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं. ओके, जो येलो पोर्शन है वहाँ पे है कि मतलब हाँ ठीक ठाक मीडियम लेवल पे जो वहाँ के की पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का मीडियम लेवल मतलब समवेयर मोर देन 50% पीपल टू 70%. इन शॉर्ट अगर आपका मीडियम लेवल ऑफ पॉपुलेशन जो है वो बेयर नेसेसिटीज़ को एक्सेस कर सकते हैं. ग्रीन मीन्स द बेस्ट परफॉर्मेंस मीन्स देयर द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन. ओके, मैक्सिमम लोग जो हैं वो क्या हैं वो बेयर नेसेसिटीज़ को एक्सेस कर सकते हैं. मीन्स उनके पास बेयर नेसेसिटीज़ जो बेसिक लाइफ एक जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसको जीने के लिए जितनी नीड्स हैं जो नेसेसिटीज़ हैं वो सारी की सारी वो उसके पास अवेलेबल हैं. इन शॉर्ट कहा जाए तो आप देखिए 2012 में क्या इंडिया का स्टेटस था और 2018 में क्या स्टेटस था. आप 2012 में देख सकते हैं 50% से भी ज़्यादा इंडिया में जो बेयर नेसेसिटीज़ के लिए एक्सेसिबिलिटी थी वो बहुत कम थी, बहुत लो थी, राइट. बट 2018 में आप देखें थ्रू आउट द इंडिया आई थिंक सिर्फ ये बंगाल और झारखंड वाला जो सेक्शन है देन आज जो ये कॉर्नर का रेड स्टेट है, ये क्वेश्चन है आपके लिए कौन सा स्टेट है. सिर्फ यहाँ पर आप कहें तो सिर्फ जो ये जिस एरिया है रेड वाला यहाँ बंगाल या फिर जो ये आपका झारखंड है ये वाला ही एरिया मेजॉरिटी में है जहाँ पर मैक्सिमम लोगों के पास बेयर नेसेसिटीज़ का एक्सेस नहीं है. बट आप देखें जो ज़्यादातर जो इंडिया है जो मैक्सिमम इंडिया है चाहे वो मिडिल नॉर्थ हो, साउथ हो, मिड सेंट्रल हो या फिर नॉर्थ ईस्ट हो, ये सारा का मैक्सिमम पार्ट ऑफ द इंडिया 2018 में जो है वहाँ के लोग जो ज़्यादातर जो मीडियम लेवल पे जो है वो एक्सेस कर पाते हैं बेयर नेसेसिटीज़ को. जबकि ओवरऑल आप देखें तो गुजरात, केरला, राजस्थान, पंजाब या फिर उत्तराखंड जैसे स्टेट्स जो हैं वहाँ पे मैक्सिमम लेवल पे मतलब हाईएस्ट लेवल पे बेयर नेसेसिटीज़ का एक्सेस है लोगों के पास. अर्बन एरिया वाइज अगर हम कंपेयर करें कि बेयर नेसेसिटीज़ का एक्सेस में क्या चेंजेस आए हैं इन लास्ट 6 ईयर. अगर 2012 और 2018 में डिफरेंस देखें तो 2012 में जो हाई लेवल मतलब आप देखिए जो हाई लेवल है बेयर नेसेसिटीज़ जो हैं बेसिक नेसेसिटीज़ के एक्सेस का वो सिर्फ 2, 3, 4 स्टेट्स में ही था, जो कि 2018 में मोर देन 50% ऑफ दिस स्टेट्स के पास एक्सेस था एट हाई लेवल. किस में? बेसिक नीड्स में या नेसेसिटीज़ में. देखिए बेयर नेसेसिटीज़ का जो मेन चैलेंज फेस करते हैं वो करते हैं पुअर पीपल, क्योंकि फॉर द रिच पीपल दे हैव द ऑप्शन. अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि मिस्टर सुब्रमण्यम ने एग्जांपल के थ्रू एक एग्जांपल कोट किया था. लेट्स से if you have mosquito issues and you are the rich person, then you can go for the private option, for example all out, good night, you can afford this thing. But for the poor people they cannot access these things. Okay, they do not have the private options, they cannot afford. So that is the the biggest challenge. वो सबसे बड़ा challenge है for the basic necessities. ओके एंड आप देख पाएंगे इंडिया में 2012 एंड 18 में क्या डिफरेंस है. जो आपका जो डार्क बार है, राइट, जो डार्क वाला बार है ये आपको बताते हैं 2012 का स्टेटस, और 2018 का स्टेटस जो लाइन वाला ग्रीन वाला बार है ये आपका 2018 का स्टेटस बताते. तो अब देखिए जो बेसिक नेसेसिटीज़ में 35% इम्प्रूवमेंट हुई है
जो पुअर पीपल थे उनमें, जबकि जो रिच पीपल थे उनके पास ऑलरेडी एक्सेस होता है प्राइवेट सेक्टर, तो उनमें कोई ज़्यादा खास चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारा मेन फोकस ही पुअर लोग है। रिच पीपल के पास ऑलरेडी दे हैव ऑप्शन, if they need something they can afford by the private source, but for the poor people it is very difficult, so government has to come in front। आप देखिए रूरल इंडिया में जो था, जो रूरल इंडिया के जो पुअर पीपल थे, राइट, उनका जो स्टेटस था बेयर नेसेसिटीज़ को एक्सेस करने का, वो 43% इन जंप हुआ है, अगर आप बात करें 2012 से 2018 तक का। ओके, एंड पुअर पीपल अर्बन में 21% इम्प्रूवमेंट आई है, कि 21% ज़्यादा लोग देन 2012 से एक्सेस कर पाते हैं बेसिक नेसेसिटीज़ को। ओके, सो दिस इज़ द होल ब्रीफिंग ऑफ दिस स्लाइड। तो आप देखिए इसके, और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, सो दैट आप पता इक्विटी कर पाएँ। ओके, आप एक इंक्रीज इन इक्विटी कर पाएँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो रिच पीपल उनके पास प्राइवेट ऑप्शन होता है, जैसे कि मैंने बताया, फॉर द पब्लिक गुड्स, बट फॉर पुअर पीपल दे डू नॉट हैव ऑप्शंस। सो ओवरऑल द आउटलुक इज़ दैट कि जो कुछ भी इकोनॉमिक सर्वे ने जो लास्ट ईयर रियलाइज़ किया, या जो कुछ भी उसने देखा या ऑब्ज़र्व किया, उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो इंडियन इकॉनमी है वो वी शेप में क्विकली रिकवरी करेगी, या वी शेप में उसने रिकवरी की। ओके, इंडियन इकॉनमी ने जो पेंडेमिक के थ्रू ऑल ऑफ द सडन फॉल आया, उससे वो रिकवर्ड हुई इन वी शेप। ओके, और सेकंड थिंग क्या है, जो इकोनॉमिक सर्वे बताता है, वो कहता है कि जो पॉलिसी मेकिंग है वो बहुत मेच्योर थी। जब भी हम हिस्ट्री को रिकॉर्ड करेंगे तो वहाँ पे पेंडेमिक को हमने कैसे फेस किया, दैट वाज इन अ वेरी मेच्योर मैनर, कि जो हमारा पॉलिसी रिस्पॉन्स था वो बहुत मेच्योर था, बिकॉज दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन रिसर्च। ओके, सो दिस इज़ एज पर द इकोनॉमिक सर्वे। और ये क्यों हुआ, बिकॉज जो हमारे पास एबिलिटी थी बोल्ड डिसीजन लेने की, हमने बोल्ड डिसीजन लिए। ओके, हमने कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स कंटिन्यू रखे, हमारे पास विलिंगनेस थी कि वी आर रेडी टू टेक शॉर्ट टर्म पेन सो दैट इन अ लॉन्ग टर्म वी कैन हैव द गेन। ओके, जहाँ पे हमने जो हमारा स्टेटस था उसकी जगह हमने जो लेमैन पीपल थे, जो लेमैन था, उसकी लाइफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी देन आर इकॉनमी और इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, और जो पॉलिसी मेच्योरिटी इन्हीं चीज़ों को ही सिग्निफाई करता है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, ये आउटलुक में ये भी मेंशन्ड है कि जो लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव है, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन ही समवेयर 135 करोड़ है, तो उसकी जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया टू फेस दिस पेंडेमिक एंड टैकल द पेंडेमिक चैलेंज। ओके, जिसने ऑप्टिमिज्म मीन्स पॉजिटिविटी बूस्ट की है इन बोथ हेल्थ एंड द इकोनॉमिक फ्रंट्स। एंड बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए बिकॉज ऑफ द वैक्सीनेशन। स्टिल हम लोगों को टेक केयर करनी होगी, एंड जो कॉशन है ये रखनी पड़ेगी टिल द कंप्लीट वैक्सीनेशन। जैसे कि आपको पता होगा अमेरिका इज़ 100% वैक्सीनेटेड, एंड नाउ देयर प्रेसिडेंट इन आज 31 मई आई थिंक 1 वीक और 10 days बिफोर जो US प्रेसिडेंट है उन्होंने अनाउंस किया था कि दे ऑल अमेरिकन्स कैन लिव नाउ द लाइफ like before pandemic situation, like no need to take mask or the social distancing because of 100% vaccination। but India में जब तक vaccination नहीं हुआ till then we have to be very cautious। that is all about the outlook of the economic survey। again this is about the V-shaped economic recovery where economic survey summarizes itself, and then the economic survey emphasizes on the mature policy making, चाहे वो रिफॉर्म्स हो या फिर बोल्ड डिसीजंस लिए हों किसी भी मैनर में। उसके अलावा हमने वैक्सीनेशन वगैरह की जो ड्राइव है या जो हमने डेवलप किया है उससे बूस्ट किया हमने माइंड सेट एंड द पॉजिटिविटी अमंग द जनरल पीपल। एंड द फाइनली इकोनॉमिक सर्वे ने हमें वार्न किया कि हमें बीइंग एन इंडिविजुअल हम लोगों को कॉशियस रहना है टिल द वैक्सीनेशन इज़ डन।
100%. So thank you so much. This was the second part which is done of the volume 1. So आई होप आप लोगों को ये लास्ट के 6 चैप्टर्स अच्छे लगे हों. थैंक यू सो मच.